In the previous class, we have started the conducting system of heart. And conducting system of heart में हम लोग नोडल टिश्यू के बारे में पढ़े थे. क्रॉस चेक कर लीजिए सब लोग. नोडल टिश्यू के बारे में पढ़े थे. न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट, उसके बारे में भी डिस्कशन किए थे. Now today we will discuss about the cardiac cycle, the most important topic for this chapter, जहाँ से questions frequently रहता है, that is cardiac cycle. So everybody started cardiac cycle. The cardiac cycle actually the activity of heart completely is called as cardiac cycle, and ऐसा cardiac cycle आपके बॉडी में, आपके हार्ट में 0.8 सेकेंड के लिए होता है. तो वन cardiac cycle means one complete functioning of a heart. And one functioning का मतलब क्या है ना, one time contraction and one time relaxation. And systole is the contraction of the heart and diastole is the relaxation of the heart. So one contraction, one relaxation is called as one cardiac cycle and it is 0.8 second. Okay, so 0.8 second means what? Now that is less than 1 second. So it is indicating what? The 72 times per minute. And that is why the cardiac cycle is the rate of the heartbeat is, or rate of the heartbeat, or 72 times is the number of cardiac cycle to be takes place per minute. As because it is 0.8 second. Now, एक कार्डियक साइकिल में एक्चुअली क्या होता है ना, एक हार्टबीट होता है. वन हार्टबीट इज मेड अप ऑफ टू हार्ट साउंड. वन हार्टबीट इज फॉर्म्ड ऑफ टू हार्ट साउंड loved up, one love and one dub togetherly called as one heartbeat, and each heartbeat occurs in one cardiac cycle, and that is why the number of cardiac cycle is equal to the number of heartbeat, and that is why heartbeat rate is 72 times per minute. So it is the definition is what? The repeating pattern of contraction and relaxation of the heart. The repeating pattern of contraction and relaxation of the heart is called as a cardiac cycle. जैसे कि अभी मैंने बोला contraction, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल, और कॉन्ट्रैक्शन में हम थोड़ी ही देर में पढ़ेंगे. आप लोग शायद थोड़ा बहुत 10th में 9th में कभी पढ़े होंगे, 11th में हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल्स में कि पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन. We will discuss in the nervous system in details. तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में क्या होता है ना, जो आयंस का जो एक्सचेंज होता है, जो मूवमेंट होता है आयंस का थ्रू द मेम्ब्रेन, that makes the surface depolarized, and that is why contraction is called as depolarization. The contraction or depolarization is called as what? Systole, whereas relaxation के टाइम में आइदर ये पोलराइज्ड रहेगा या तो ये डीप रीपोलराइज्ड फॉर्म में रहेगा. So either it is polarization or it is repolarization. Is called as what? Diastole. इसीलिए हम लोग क्वेश्चंस फेस करेंगे तो पूछा होगा कि पोलराइजेशन ऑफ the wall of the muscles present in the heart leads to systole or leads to diastole. ना diastole. जब पोलराइज्ड होता है हार्ट मसल, देन वो डायस्टल स्टेज में होता है,
एंड जब डीपोलराइज स्टेज में होता है मसल्स, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोल, एंड सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन रिलैक्सेशन। हम थोड़ा देर इसके बारे में दूसरी जगह में बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। समझ में आया कि नहीं ये चीज की सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है? ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरली आ जाते हैं। दिस इज एक्चुअली हम यहाँ पे कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। कार्डियक साइकिल this is 0.1 second, this is 0.3 second, and this is 0.4 second. Try to understand, is very, very important. From here to here, this is called as atrial systole, means contraction of auricle. एंड हमेशा याद रखिए ऑरिकल हम बोल रहे हैं मतलब बोथ ऑरिकल, ऑरिकुलर सिस्टल और एट्रियल सिस्टल इंडिकेट करता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ ऑरिकल ऑफ द हार्ट। फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज कॉल्ड एज ventricle systole, means the contraction of the both ventricle. Now अगर 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल सिस्टोल हुआ, then for how many second or for how many time the auricle will be diastole? ना जितने टाइम के लिए auricle contraction किया, that is called as what ना auricular systole. तो 0.8 minus 0.1 that will be called as what? क्या बोलेंगे इसको? Atrial diastole. That will be called as what na? Atrial diastole. Yes. This is called as atrial diastole. तो atrial diastole का कितना हो गया? 0.7 सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? अगर 0.1 सेकेंड के लिए both the auricle contracting, then how per second, how many time the auricle will be in the diastolic phase? ना 0.7 सेकेंड। Likewise, ventricle contract होता है 0.3 सेकेंड के लिए, तो फिर वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा कितने सेकंड के लिए? 0.5. कितना होगा? 0.5 होगा कि नहीं? Yes sir. Yes So sir. this will be called as, हाँ बोलिए। So this is 0.5 second for which the both ventricle are in the diastolic phase. अब आप लोग को देखना है what is the time
for which both the auricle and the ventricle are in the diastolic phase is called as what? Na, joint diastole. So what is the common time for which the both auricle and ventricle are in the relaxed condition? That is called as what? Na, joint diastole. आप देख सकते हैं क्लियरली, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. On joint diastole or complete cardiac diastole. एंड ये कितने सेकंड के लिए है ना? 0.4 सेकंड. तो जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड, आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड, देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया 0.5 सेकंड एंड एट्रियल डायस्टोल हो गया 0.7 सेकंड. तो आई होप आप लोग को ये जो पूरा कार्डियक साइकिल का जो पूरा जो डायग्राम है आपको समझ में आ गया. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अभी मैं ऐड कर रहा हूं इसमें पॉइंट ये है, दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन से द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. यस और नो? दिस इज कॉल्ड व्हेन द बिगिनिंग ऑफ ventricular systole, and this is what? Now this is the beginning of ventricular diastole. अब लोग समझे कि नहीं समझे मैंने ये क्या लिखा? बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल. यस और नो? Yes, sir. अब कहानी को Yes, समझिए. कहानी ये है कि when the ventricle will contract means systole, जब ventricle systole कंडीशन में आएगा तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा. ठीक है, अभी मैं जो पूरा आपको कहानी समझाना चाहता हूं तो ये कहानी थोड़ा सा सब कुछ सबको ही लिख लिया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है ना? सबको ये डायग्राम लिख लिया? Yes, sir. अब Yes, ध्यान से मेरी बात sir. को सुनिए, वीडियो देखिए और सुनिए, मुझे देखिए और समझने के लिए कोशिश करिए. याद रखिए, when the ventricle, sorry, when the systole is that is going on, means during systole, सिस्टोल में क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा कि प्रेशर कम होगा? बोलिए. ड्यूरिंग द सिस्टोल प्रेशर विल बी हाई और प्रेशर विल बी लो. High. Hi. वेरी गुड. Hi, sir. So as the pressure is high during the systole, क्योंकि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो प्रेशर हाई होगा. तो प्रेशर हाई होगा तो ब्लड विल एंटर इनटू द हार्ट और ब्लड विल लीव्स द हार्ट. Leave the heart. Leave the heart. वेरी गुड. ठीक है, बट ड्यूरिंग डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, प्रेशर विल बी लो और हाई ना? लो प्रेशर. प्रेशर अगर लो है तो ब्लड एंट्री करेगा हार्ट के अंदर कि ब्लड एग्जिट करेगा? Exit. नहीं करेगा. एंड हम लोग क्लियरली पढ़े हैं कि ब्लड विल लीव्स फ्रॉम द हार्ट बाय आर्टरी एंड ब्लड विल एंटर इनटू द हार्ट बाय वेन. पढ़े है ना? Yes, Yes, sir. sir. The blood will enter into the heart by vein during the diastole as because of the low pressure inside, and blood will leaves through the your artery from heart as because the pressure inside the heart is more. आप लोग को थोड़ा बहुत विजुअलाइज करना पड़ेगा, समझ में आएगा, बहुत इजी है. तो एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड. मान लेते हैं अभी पूरा जो चारों चैम्बर है, 2 auricle and 2 ventricle, all the ventricle and auricles are in the diastolic stage means joint diastole. तो joint diastole के स्टेज में पूरा auricle
एंड वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स्ड में है. And during the relaxation, the pressure inside the heart is very low, and that is the reason why the valves are open. इसलिए valves open रहते हैं. हम लोग valves के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे. तो as because of the reason, the blood which is enter into the auricle, जो auricle के अंदर जो blood entry कर रहा है, right auricle में जो blood entry कर रहा है, that is through the pulmonary vein. Sorry, pulmonary. Sorry, जो right auricle. राइट ऑरिकल में जो ब्लड एंट्री करता है दैट इज थ्रू द सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस. एंड लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड एंट्री कर रहा है दैट इज थ्रू द पल्मोनरी वेन. लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड एंट्री कर रहा है थ्रू द पल्मोनरी वेन, इट इज ऑक्सीजनेटेड. एंड राइट ऑरिकल में जो ब्लड एंट्री कर रहा है दैट इज थ्रू द सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, थ्रू द कोरोनरी साइनस, इट इज डीऑक्सीजनेटेड. मींस ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल both the auricle will receive the blood with respect to the oxygenated and deoxygenated respectively. And क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला क्योंकि डायस्टोल के स्टेज में क्या होता है ना, भाल्व जो है वो ओपन है, तो ए भी भाल्व ओपन होगा कि क्लोज होगा ना, ओपन रहेगा. तो ए भी भाल्व क्योंकि ओपन है, सो द ब्लड विच इज एंटर इनटू द ऑरिकल, बहुत ही केयरफुली सुनिएगा, यहां से क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा. इतना कंफ्यूजन होगा कि आप लोग क्वेश्चंस बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा. सो एज द वेंट्रिकल एंड ऑरिकल बोथ आर इन द रिलैक्स्ड कंडीशन डायस्टोलिक फेज, एबी valves are open and the blood which is enter into the auricle will also enter into ventricle. क्योंकि एबी valve ओपन है तो जो ब्लड ऑरिकल के अंदर एंट्री कर रहा है सेम ब्लड वेंट्रिकल के अंदर भी एंट्री कर रहा है, पासिंग थ्रू दी AV valve as it is open. एंड ये कितना है ना 70%. तो ऑलमोस्ट 70% जो ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर एंट्री कर जाता है when the diastole continues, that is joint diastole. तो joint diastole में 70% ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल आ जाता है. joint diastole के एंड में, joint diastole के एंड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑरिकल का सिस्टोल स्टार्ट हुआ. The auricular systole started at the end of the joint diastole. तो जैसे ही auricular systole होगा, auricle के अंदर pressure create होगा, increase करेगा pressure, and that increased pressure in the auricle gives rise to the blood flow from auricle to ventricle pressurized, and वो कितना है ना 30%. इसलिए ये NCERT का लाइन है पूरा क्लियर. So during the joint diastole, the blood enter into the auricle by means of 70%. And during the auricular systole or atrial systole, the blood flow increases into ventricle by 30%. या समझे कि नहीं समझे बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है. अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं. अभी स्टार्ट हुआ जॉइंट वेंट्रिकुलर सिस्टोल. यहाँ पे अभी वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ. जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होगा, ब्लड जो है, आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा याद है, जो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड अभी प्रेजेंट है वो प्रेशराइज्ड हो जाएगा. प्रेशराइज्ड होने से मे बी द चांसेस देयर द ब्लड व्हिच इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल विल कम्स टू द ऑरिकल अगेन थ्रू द AV valve, as because the AV valve is open till now. So the blood present in the ventricle has the chances to get into the auricle again, and that is the reason why during the beginning of the ventricular systole immediately this AV valve will closed. इसीलिए ventricular systole के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में फर्स्ट क्या होगा ना, AV valve क्लोज होगा. So AV valve will close at the beginning of what ना, ventricular systole. ये फर्स्ट इवेंट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों ध्यान से, क्योंकि ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में ये AV valve अभी क्लोज हो गया. सो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है दैट विल अनेबल टू पास इनटू ऑरिकल, अनेबल टू पास इनटू ऑरिकल. तो अल्टीमेटली ये ब्लड किसके थ्रू पास करेगा ना, इट विल बी पासेस थ्रू व्हाट ना, पासेस थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी एंड थ्रू द आउटा. तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो अल्टीमेटली किसके थ्रू पास करेगा ना, थ्रू दी आउटा. एंड जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड है वो अल्टीमेटली किसके थ्रू पास करेगा ना, थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी. एंड हमने क्लियरली बोला था
कि पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टेमिक आउटा दोनों में कौन सा भाल्व प्रेजेंट है ना, सेमी लूनार भाल्व, याद है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो सेमी लूनार भाल्व विल बी Yes. ओपन और सेमी लूनार भाल्व विल बी क्लोज्ड। नाउ क्या होगा? Open. Open. ओपन होगा कि नहीं? तो इसीलिए ए भी वाल्व क्लोज हुआ, बट इमीडिएटली व्हाट विल हैपन इन द सेकंड, ना दैट सेमी लूनार भाल्व कैन यू हियर मी? Yes, sir. तो अभी क्या होगा ना, ए भी वाल्व क्लोज्ड हुआ, बट सेमी लूनार भाल्व क्या होगा ना, ओपन है। वन मिनट, sure. Just a minute, hold on बच्चों। शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। वन मिनट। हाँ, ठीक हो गया। सबको विजिबल है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हम लिख रहे Yes, थे, sir. हम लिख रहे थे, देखो ए बी valve closed हुआ and the blood now passing from the out end, that is the blood passing from the right ventricle and left ventricle by means of the pulmonary artery and by means of the systemic aorta respectively, so that the semilunar valve will open. तो ए भी valve closed हुआ लेकिन semilunar valve open हुआ, and the gap between these two is called isovolumetric systole. आइसोवॉल्यूमेट्रिक सिस्टम, मतलब को समझिए, खाली नाम रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, मतलब को समझिए। आइसो मीन्स सिमिलर, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, मत वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ना, ब्लड का वॉल्यूम। सो ब्लड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट इन द सिस्टोलिक स्टेज इज कॉल्ड एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल। आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप एक घर के अंदर एंट्री किए, दरवाजा को आपने खोला, ठीक है, एंड खिड़की जाके उसके बाद खोला, तो दो खोलने के बीच में जो टाइमिंग है, ठीक है, तो एयर विल बी रिमेन इनसाइड द रूम विल बी सेम। मतलब है, यहां पे फिर से हार्ट में आते हैं, आपने एबी वाल्व क्लोज किया, जब एबी वाल्व क्लोज हुआ तो ऑलरेडी सेमिलुनर वाल्व क्लोज्ड है कि ओपन है? When the AV valve has been closed, Closed. yes,
When the AV valve closed, the semilunar valve already in the closed state. उसके बाद जाके ओपन हुआ सेमिलुनर वाल्व. एक सेकेंड बच्चों. So, क्योंकि एवी वाल्व क्लोज हुआ एंड ऑलरेडी सेमिलुनर वाल्व क्लोज था, तो ये जो दोनों का जो क्लोजिंग है, दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इनसाइड द सिस्टल विल बी रिमेन कांस्टेंट. क्योंकि जब तक सेमिलुनर वाल्व ओपन नहीं होता है तब तक द ब्लड वेंट्रिकल के अंदर कांस्टेंट रहेगा ना. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, And that sir. is called as isovolumetric during the systole, so it is called as isovolumetric systole. तो इतना बस ये खाली याद रखिए कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल विल बी कांस्टेंट, सेम ओनली व्हेन बोथ द valve will closed, and that is approximately 0.05 सेकेंड. ये 0.05 सेकेंड के लिए होता है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग फिर से आते हैं सेकेंड में. देखिए, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल. अब देखिए, ब्लड जो था वेंट्रिकल में वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकल गया टू द लंग्स from the right ventricle, and from the left ventricle the blood passes through the aorta to the different body parts. अब वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म, अब स्टार्ट होगा वेंट्रिकल का डायस्टोल. the beginning of the ventricular diastole here. तो वेंट्रिकल का डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन. वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होगा मतलब वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा कि नहीं. एंड वेंट्रिकल का प्रेशर जैसे ही डिक्रीज करेगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेंट्रिकल का अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा, जो ब्लड बाहर निकल गया था थ्रू द आउट एंड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, तो ब्लड फिर से रिटर्न करने का चांस है कि नहीं. बिकॉज द वेंट्रिकल इन द रिलैक्स्ड कंडीशन, बिकॉज द वेंट्रिकल इज एक्सपैंडिंग, बिकॉज द वेंट्रिकल इज रिलैक्सिंग, द प्रेशर इज डिक्रीजिंग इनसाइड द वेंट्रिकल, तो ब्लड जो निकल गया था वो रिटर्न करेगा कि नहीं. Yes, sir. रिटर्न Yes, करेगा sir. तो इमीडिएटली व्हाट शुड बी क्लोज्ड. Semilunar valve. Semilunar valves. यस, इसीलिए बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल में जो फर्स्ट इवेंट होगा, एंड दैट इज व्हाट, ना सेमिलुनर वाल्व क्लोज. इसीलिए बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल में सेमिलुनर वाल्व क्लोज होगा फर्स्ट, और सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो गया तो ब्लड अभी वेंट्रिकल में वापस नहीं आएगा. समझ में आया कि नहीं? अब वेंट्रिकल का डायस्टोल कंटिन्यू कर रहा है, वेंट्रिकल का डायस्टोल कंटिन्यू करेगा तो जो एबी वाल्व क्लोज्ड था वो एबी वाल्व क्या होगा ना, ओपन हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ ओपन हो जाएगा. तो सेकेंड इवेंट व्हिच इज ऑकर्स इज व्हाट, ना एबी वाल्व विल ओपन. अब देखिए, जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज हुआ तब ऑलरेडी एबी वाल्व क्लोज्ड था, क्योंकि कुछ देर के बाद एबी वाल्व ओपन हुआ. सो व्हाट इज द कॉमन टाइम फॉर विच बोथ द सेमिलुनर वाल्व एंड एबी वाल्व रिमेन क्लोज्ड इज द टाइम कॉल्ड एज 0.04 सेकेंड. एंड उसी टाइम के लिए जो ब्लड है वेंट्रिकल के अंदर वो कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक, बट इट इज ऑकर इन द डायस्टोल, सो इट इज कॉल्ड एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक डायस्टोल. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So it is called as isovolumetric diastole. It is 0.04 second. I hope आप लोग को isovolumetric systole and isovolumetric diastole का मतलब समझ में आया. Iso मतलब similar, volume मतलब quantity of blood. It is occurs in the systolic stage, then it is called isovolumetric systole. If the volume of the blood in the ventricle remain constant for the during the diastolic stage, called as isovolumetric diastole. And simple concept है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है मतलब both the valve
रिमेन क्लोज्ड। तो कार्डियक साइकिल किस किस को समझ में नहीं आया बोलिए? आई होप सबको समझ में आया होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया ना कार्डियक साइकिल? Yes, sir. बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियक साइकिल का। नेक्स्ट जो मैंने स्टेटमेंट लिखाया था, बताया तो वो स्टेटमेंट लिख देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल blood enters into auricle of heart by 70% and same blood also enter the ventricle. Full stop. During atrial systole, blood flow increases into ventricle by about 30%. ये क्वेश्चंस आपको पक्का पूछेगा कि 30% कब होता है ना ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल, 70% कब होता है ना ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल। याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछेगा। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी शायद आप लोग जानते हो, वैसोमोटर सेंटर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैसोमोटर सेंटर? ना कार्डियोवैस्कुलर सेंटर प्लस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। टुगेदरली कॉल्ड एज व्हाट ना? वैसोमोटर सेंटर। एंड हमारा वैसोमोटर सेंटर कौन है? मेडुला ऑब्लंगेटा। सो वैसोमोटर सेंटर लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लंगेटा। याद रखिए, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रिदम ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल बाय द मेडुला ऑब्लंगेटा सेम। तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर मतलब रेट ऑफ हार्टबीट वगैरह भी मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। तो ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन से जो रहता है कि कार्डियोवैस्कुलर सेंटर इज लोकेटेड इन, that is in the medulla oblongata. Likewise respiratory center is also located in medulla oblongata. याद रहेगा? Yes, sir. अभी हम पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। पोलराइजेशन सपोज टू बी, ये एक मेम्ब्रेन है, किसी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पोलराइजेशन मींस इनसाइड पॉजिटिव है, आउटसाइड नेगेटिव है। इनसाइड सॉरी इनसाइड नेगेटिव है एंड आउटसाइड पॉजिटिव है। इनसाइड नेगेटिव
outside is positive. This is inside the plasma membrane and this is outside. So inside है negative, outside है positive, then it is called as polarization. अगर इसका polarity alter हो जाएगा, then that is called as what ना depolarization. So depolarization में क्या होगा ना, inside हो जाएगा positive and outside हो जाएगा negative. And when the positive is occur inside the, देखो भाई निगेटिव का मतलब क्या है एंड पॉजिटिव का मतलब क्या है. निगेटिव का मतलब है लेस पॉजिटिव आयन. निगेटिव का मतलब है लेस पॉजिटिव आयन एंड पॉजिटिव का मतलब है मोर पॉजिटिव आयंस. मतलब ये निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही इंडिकेट करता है पॉजिटिव आयंस. लेकिन नेगेटिव का मतलब है लेस नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव का मतलब मोर. तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है ना, क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस. समझे कि नहीं समझे बच्चों? यस सर. यस सर. Yes, sir. तो अभी देखिए पोलराइजेशन में क्या है ना, इनसाइड लेस पॉजिटिव आयन एंड आउटसाइड मोर पॉजिटिव आयंस. तो अगर पॉजिटिव आयंस धीरे धीरे इनफ्लक्स किया, अंदर की तरफ मूव किया, then क्या हो जाएगा ना, inside become more positive ion in comparison to outside, so outside become less, so called as negative, and inside become more positive ions, so it is called as positive. इसी alteration of polarization को क्या बोलेंगे ना, depolarization. अब ये depolarization चेंज होके again polarized होगा. again polarization को हम लोग क्या बोलते हैं ना, repolarization. तो repolarization में फिर से आउटसाइड हो जाएगा पॉजिटिव एंड इनसाइड अगेन बिकम्स व्हाट ना, नेगेटिव. मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आयंस कहाँ की तरफ बाहर निकल रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस क्या हो गया ना, बाहर की तरफ निकल गया. देन इट इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन. क्लियर है व्हाट इज पोलराइजेशन, व्हाट इज डीपोलराइजेशन एंड व्हाट इज रीपोलराइजेशन? यस सर. यस सर. Yes, sir. अभी मैं आपको इस पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन कैसे कार्डियक एक्टिविटी के थ्रू रेगुलेटेड होता है मैं आपको बता रहा हूँ. ये पेज कंप्लीट हो गया क्या? यस. मैं नेक्स्ट पेज में मूव करूँ? यस सर. Yes, sir. चलिए. तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट मसल पहले किस कंडीशन में है ना, पोलराइजेशन कंडीशन में. हार्ट मसल इज इन द पोलराइजेशन कंडीशन. तो पोलराइजेशन अभी मैंने क्या बोला था, इनसाइड नेगेटिव होगा, आउटसाइड होगा पॉजिटिव. एंड पोलराइजेशन मींस अभी हम लोग लिखे थे कुछ देर पहले, डायस्टल होगा कि सिस्टोल होगा ना, डायस्टल होगा. मतलब रेस्टिंग. So resting heart, that is diastole, is called as polarization. And polarization में जो चार्ज होता है that is approximately -60 millivolt. ये माइनस का मतलब मैंने अभी बताया था, माइनस मतलब लेस पॉजिटिव. तो what is the amount of, what is the charge which is present inside the cytoplasm of the cardiac muscle cells ना, -70 millivolt during the resting और डायस्टोलिक फेज ऑफ द हार्ट. अभी देखिए ये पोलराइजेशन से चेंज होके धीरे धीरे डीपोलराइजेशन की तरफ जाएगा. स्टेप 1 दैट इज स्लो Na प्लस इनफ्लक्स. अभी मैंने समझाया था ना कि अगर पॉजिटिव आयंस एंट्री करेगा इनटू द साइटोप्लाज्म, देन पॉजिटिव आयंस का क्वांटिटी बढ़ेगा. तो पॉजिटिव आयंस का क्वांटिटी बढ़ने से धीरे धीरे क्या होगा, ये जो अभी पोलराइजेशन में था अभी वो डीपोलराइजेशन की तरफ पास करेगा कि नहीं. सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, डीपोलराइजेशन. एंड ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन ये जो -60 था
ये -60 will be changed into what? To -40. ये -60 था, अभी पॉजिटिव आयंस का क्वांटिटी बढ़ेगा तो निगेटिव जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज क्या होगा ना, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो Yes, sir. -60 will be changed into what? -60 धीरे धीरे -40 की तरफ आएगा because of the sodium influx. Now the next step is calcium influx. मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन में पॉजिटिव आयन इनफ्लक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में Na+ इनफ्लक्स हुआ, सेकेंड स्टेप में देखिए Ca2+ इनफ्लक्स हो रहा है। Na+ इनफ्लक्स के वजह से ये -60 से -40 तक पहुंच गया। अब कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से दैट विल बी फ्रॉम -40 to +20, so we can say depolarization continue. So depolarization continues means systole continue or contraction continue, and that gives rise to from -40 millivolt that will be changed into what na +20 millivolt, क्योंकि पॉजिटिव आयंस का क्वांटिटी और बढ़ा और इंक्रीज किया, तो प्लस -40 था, -30, -20, -10, 0, +10 एंड दैट इज रिचिंग व्हाट ना +20। तो +20 तक पहुंच गया, मतलब ये समझ लीजिए कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो +20 मिलीवोल्ट तक कंटिन्यू करता है। समझ में आया? अब क्या होगा, डीपोलराइजेशन से अभी होगा रीपोलराइजेशन, एंड रीपोलराइजेशन में क्या होता है, द पॉजिटिव आयंस विल बी इफ्लक्स आउट, बाहर की तरफ निकलेगा, एंड व्हिच पॉजिटिव आयंस इज इफ्लक्सिंग आउट, द K+, तो हियर इट इज K+ इफ्लक्स, एंड K+ इफ्लक्स होगा तो धीरे धीरे जो +20 था वो फिर से +10, 0, देन -10, -20, ऐसे करते करते वो फिर से -60 तक पहुंच जाएगा, एंड दैट गिव्स राइज टू व्हाट ना अगेन पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। Repolarization means this is actually again diastole, एंड हार्ट के केस में ये जो रीपोलराइजेशन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा पोलराइज्ड हो जाता है। So repolarization actually it is not the normal polarization. तो आप देख सकते हैं repolarization मतलब again diastole, एंड diastole किसको हम बोलते हैं, पोलराइजेशन को भी तो diastole बोलते हैं। again polarization means repolarization, but actually होता क्या है ना, repolarization के टाइम में ये -60 से भी ज्यादा हो जाएगा, एंड इसीलिए repolarization को हम लोग बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, कॉल्ड एज व्हाट ना, हाइपर पोलराइजेशन। So in case of heart muscles, cardiac muscles, the repolarization is called as what na, hyperpolarization, because it is some sort of what the -20 millivolt जो सॉरी +20 millivolt था, that is change into what the -70 millivolt तक रीच कर जाता है, क्योंकि ये ज्यादा पोलराइज्ड हो गया, इसीलिए उसको हाइपर पोलराइज्ड बोलते हैं, एंड दैट -70 मिलीवोल्ट विल बी अगेन चेंज इनटू व्हाट ना -60 मिलीवोल्ट तक ये रीच कर जाएगा। -60 मिलीवोल्ट हो गया तो फिर से वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है? Yes. अभी हम बताते हैं आपको सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। यू नो दैट कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दैट इज ANS, ANS has two different, that is controlling activity
and that is what sympathetic and parasympathetic. Sympathetic and parasympathetic. ठीक है, सिंपैथेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं ना, थोरासिको लंबर आउटफ्लो। मैं खाली बता देता हूं, thoracic lumbar outflow means sympathetic nervous system is under the control of thoracic spinal nerve and lumbar spinal nerve, whereas the parasympathetic is called as craniosacral outflow. इसके बारे में डिटेल्स अभी बिल्कुल नहीं बता रहे क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे पूरा नर्वस सिस्टम में डिटेल्स में। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ क्रेनियल नर्व एंड सैक्रल स्पाइनल नर्व। क्रेनियल मतलब द ब्रेन, the nerve associated with the brain is called as cranial nerve and the nerves associated with the spinal cord is called as spinal nerves. So sympathetic is under the control of spinal cord directly, whereas parasympathetic is under the control of spinal cord and brain both. क्योंकि spinal cord से spinal nerve है sacral and brain का हो गया cranial. That is why it is called as craniosacral outflow. And which cranial nerve? Which cranial nerve? ऐसे तो 3-4 cranial nerve parasympathetic में involved है. The most important is called as vagus cranial nerve, and that is called as what ना 10th cranial nerve, which is called as vagus. क्योंकि total cranial nerve आपके body में 12 pair है, and 10th cranial nerve is called as vagus, which comes under parasympathetic. And ये हम लोग क्लियर कट पढ़े हैं कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेट करता है कार्डियक एक्टिविटी को एंड पारासिम्पैथेटिक इसको इनहिबिट करता है, स्लो डाउन करता है। तो सपोज टू भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्टर हो जाएगा, मीन स्टिमुलेटिंग द कार्डियक एक्टिविटी। एंड क्योंकि आप इमरजेंसी कंडीशन में है, स्ट्रेस कंडीशन में है, स्टेनस कंडीशन में है, तो आपका बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक। एंड सिंपैथेटिक विल स्टिमुलेट द कार्डियक एक्टिविटी टू इंक्रीज द हार्ट बीट रेट, टू इंक्रीज द कार्डियक दैट इज ब्लड फ्लो। एंड जब आप एक्सरसाइज खत्म कर दिए, टेंशन फ्री हो गए, अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो आपका बॉडी का जो कंजप्शन है, ऑक्सीजन कंजप्शन, न्यूट्रिएंट कंजप्शन, वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए हार्ट का जो एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज करके नॉर्मल हो जाएगा। एंड दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट ना पैरासिम्पैथेटिक। एंड पैरासिम्पैथेटिक अंडर कौन है? वेगस। तो वेगस क्या करता है? इनहिबिट द एक्टिविटी। मींस वेगस क्या करेगा ना, हार्ट रेट को स्लो करेगा, कार्डियक एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगा, हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करेगा टू नॉर्मल। अगर वेगस ज्यादा स्टिमुलेटेड हुआ तो, अगर वेगस एक्सेस स्टिमुलेटेड हो गया तो हार्ट बीट रेट और ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि एक्स्ट्रा और ओवर स्टिमुलेशन ऑफ वेगस लीड्स टू नॉर्मल हार्ट बीट रेट की, डिक्रीज्ड हार्ट बीट रेट की, इंक्रीज्ड हार्ट बीट रेट ना डिक्रीज्ड हार्ट बीट रेट। किसी को समझने में दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ये वाला। अभी मैं सीधा सीधा आपको बोल देता हूं कि कौन कौन आपका हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करते हैं, कौन कौन आपका हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करते हैं। तो पहले हम आते हैं इंक्रीज्ड हार्ट बीट रेट। तो इंक्रीज्ड हार्ट बीट रेट कौन कौन करेगा? फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग हार्ट बीट रेट। एक तो हो गया सिंपैथेटिक,
Second is adrenaline, noradrenaline. And adrenaline, noradrenaline togetherly called as what na? Catecholamine. Adrenaline, noradrenaline togetherly called as catecholamine. Next, moderate increase is blood calcium. Moderate increase in blood calcium. Next, increasing temperature. टेम्परेचर इंक्रीज करने से हार्ट बीट रेट इंक्रीज करता है. इसका कंसेप्ट क्या है ना, आप अगर एक्सरसाइज करें तो आपका बॉडी टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, हीट हो जाता है, इंक्रीज करता है बॉडी टेम्परेचर. तो ये इंडिकेट करता है कि यू आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव. As because the reason why the metabolic heat is more generating, so the body temperature increases, इसलिए स्वेटिंग होता है. तो ये इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन का कंजप्शन हो रहा है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो इंक्रीज ऑफ द हार्ट बीट रेट विल बी देयर. नेक्स्ट इज decrease in acetylcholine. Acetylcholine क्वांटिटी डिक्रीज करेगा, देन हार्ट बीट रेट इंक्रीज करेगा. मतलब क्या है ना, एसिटाइलकोलिन इंक्रीज करने से हार्ट बीट रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? Decrease करेगा. अगर एसिटाइलकोलिन इंक्रीज करता है तो हार्ट बीट रेट डिक्रीज करेगा, वाइस वर्सा है. सेकंड इज इंक्रीज इन PCO2 इन ब्लड. PCO2 ब्लड इंक्रीज करेगा तो हार्ट बीट रेट इंक्रीज करेगा. H प्लस आयन इंक्रीज करेगा, देन हार्ट बीट रेट इंक्रीज करेगा. पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन डिक्रीज करेगा तो हार्ट बीट रेट इंक्रीज करेगा. एंड थायरोक्सिन इंक्रीज करेगा तो हार्ट बीट रेट इंक्रीज करेगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये फैक्टर सीधा सीधा पूछता है कि थायरोक्सिन इज अ मेटाबॉलिक हार्मोन. थायरोक्सिन इंक्रीज, देन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट और द बॉडी विल इंक्रीज, तो मेटाबॉलिज्म विल फास्टर, एंड मेटाबॉलिज्म फास्टर होगा तो हार्ट बीट रेट इंक्रीज करेगा. एंड ये सोडियम पोटेशियम का कंसेप्ट क्या है ना, सोडियम एंड पोटेशियम अगर इंक्रीज करता है तो क्या होगा ना, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है. अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा ना, बिकॉज ऑफ द सोडियम पोटेशियम इंक्रीज्ड, कैल्शियम, अभी हम लोग देखे थे कि कैल्शियम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीपोलराइजेशन दैट मेक्स फ्रॉम -40 टू +20. तो कैल्शियम अगर कम हो गया ना तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा, एंड उस कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है एक्सेस पोटेशियम एंड एक्सेस सोडियम. इसीलिए सोडियम पोटेशियम क्या होगा ना, डिक्रीज करेगा तभी हार्ट रेट इंक्रीज करेगा. एंड कभी कभी ऐसे हम लोग जानते हैं, शायद आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, तो कार्डियक अरेस्ट जो डेथ हो जाता है, हार्ट का एक्टिविटी स्टॉप हो जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस Na+ एंड K+ इन द ब्लड. एक्सेस K+ Na+ ब्लड में होने से क्या होगा ना, जो जो कैल्शियम चैनल है उसको ब्लॉक कर देगा, तो इसके लिए हार्ट का जो एक्टिविटी है वो पूरा स्टॉप हो जाता है. समझ में आएगी नहीं? तो आप खाली इंक्रीज हार्ट बीट रेट याद रखिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि डिक्रीज्ड हार्ट बीट रेट क्या होगा. तो यहाँ पे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, तो आप इंक्रीज का सिंबल दे दीजिए क्योंकि हमने यहाँ पे सिंबल नहीं दिया था. तो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन इंक्रीज करेगा तो हार्ट बीट रेट भी इंक्रीज करेगा. तो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन डिक्रीज करेगा तो हार्ट बीट रेट भी डिक्रीज करेगा. तो ये पूरा कहानी आपको समझ में आया? ये सर नो? Yes, Yes. sir. Yes, sir. एंड न्यूबॉर्न बेबी में हार्ट बीट रेट बहुत रैपिड होता है, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 140 टाइम्स पर मिनट. ठीक है. एंड
rapid heartbeat rate, rapid heartbeat rate is called as what? Or pulse rate. Rapid heartbeat rate or pulse rate is called as, here that is tachycardia. And decreased or slow heartbeat rate is called as, or pulse rate, Bradycardia. bradycardia. And tachycardia कब होगा ना? ड्यूरिंग द स्टेनस कंडीशन. स्टेनस कंडीशन जैसे एक्सरसाइज, साइकिलिंग एटसेट्रा, रैपिड एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, तो टैकीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट बीट रेट इंक्रीज करें. ब्रैडीकार्डिया कब होता है ना? ड्यूरिंग द स्लीप, क्योंकि रेस्ट ले रहे हैं तो हार्ट बीट रेट क्या होगा ना? नॉर्मल हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. एंड ड्यूरिंग लो बॉडी टेम्परेचर, ऑलरेडी मैं लिख दिया हूं कि इंक्रीज्ड हार्ट बीट रेट टेम्परेचर बढ़ने से होता है. तो डिक्रीज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर लीड्स टू द डिक्रीजिंग हार्ट बीट रेट और डिक्रीजिंग पल्स रेट. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, तो नेक्स्ट sir. क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सम ऑफ द एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू द कार्डियक साइकिल. ठीक है.